Good morning, ninth class students. Our today's topic is expansion card and softwares. Okay, what is expansion card? Expansion boards are cards are connected to the sockets of motherboard called expansion slots. The expansion slot in a socket circuit that allows us to attach devices such as modem, sound cards, graphic cards, network interface cards, etc. to the computer in order to expand its working capability and performance. That is the main reason to attach expansion card with computer. Expansion slots differ primarily in the speed in which they transfer information between the processor and the expansion board. That is the main working of the expansion card. There are three types of expansion slots that are found in modern computers, and these are PCI, peripheral component interconnect, okay, then ISA, industry standard architecture, AZP, accelerated graphics port, accelerated graphics for industry standard architecture. We will not do in this topic. We will discuss about PCI, peripheral component interconnected, because it is related to your syllabus. Kinds of expansion card: network interface card, NIC card. A network interface card is an expansion board that enables the exchange of data between the computer and the network. ओके, अगर एक्सपेंशन कार्ड होगा तभी हम अपने कंप्यूटर पर क्या कर सकते हैं, इंटरनेट जो है वो चला सकते हैं. NICs are designed to operate in a specific type of network such as Ethernet or token ring. Modern NICs are manufactured to the integrated into PCI expansion slots. Okay, तो हमारे क्या होता है, जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके मदरबोर्ड पर NIC कार्ड जो है वो लगा हुआ होता है, और यही वो कार्ड है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो है अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट चला सकते हैं. अनदर कार्ड वी हैव दैट इज साउंड कार्ड, और NIC की पिक्चर हम देख सकते हैं. द लुक ऑफ द NIC कार्ड वी कैन सी इन द पिक्चर. साउंड कार्ड, a sound card is an expansion board that enables to produce sound as output that can be heard through speakers or headphones. It is also used to record sound as input from a microphone that is connected to the computer and to edit or mix sound stored on a disk. Most of the sound cards are manufactured to be integrated into PCI expansion slots. ये सारे के सारे जो होते हैं आज के टाइम में मॉडर्न कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, पहले से ही जुड़े हुए होते हैं सभी एक्सपेंशन स्लोट्स जो हैं वो. नेक्स्ट वी हैव ग्राफिक्स कार्ड, डिस्प्ले अडेप्टर. A graphics card is an expansion board that helps us to process and display video. Modern display adapters contains memory. Therefore, many times the RAM of computer is not used for storing the data. Availability of memory is a major factor in determining the screen resolution and color that can be displayed on the monitor. ग्राफिक कार्ड्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू इंटीग्रेटेड इनटू PCI एक्सपेंशन स्लोट्स. ये हमारा ग्राफिक कार्ड है. वी कैन सी द पिक्चर ऑफ ग्राफिक कार्ड. और ग्राफिक कार्ड ज़्यादातर जब हम गेम प्ले करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, उसको सपोर्ट करते हैं हमारे जो ग्राफिक कार्ड्स होते हैं. देन वी हैव पोर्ट्स. व्हाट इज पोर्ट्स? Computer port is an interface between the computer and peripheral devices like mouse, keyboard, monitor, printer, speaker, flash drive, pen drive, etc. तो आपने अपना पेन ड्राइव लगाना है, कंप्यूटर के साथ अटैच करना है. वी कैन अटैच पेन ड्राइव थ्रू द पोर्ट्स. पोर्ट्स के थ्रू हम पेन ड्राइव को, कीबोर्ड को, माउस को, ठीक है, उन सभी को, स्पीकर को, फ्लैश ड्राइव को ही है, तो उन सभी को हम प्रिंटर अगर आपके पास है
तो हम पोर्ट्स के थ्रू ही कंप्यूटर के साथ उनका कम्युनिकेशन जो है वो करा सकते हैं। अ कंप्यूटर पोर्ट एक्ट्स एज a point of connection where the cables or plug from the peripheral can be plugged to facilitate data flow from and to the device. Okay, a computer port is also called a communication port as it facilitates communication between the computer and its peripheral devices. Based on the type or protocol used for communication, ports can be categorized as serial port or parallel port. सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। अ सीरियल पोर्ट, व्हाट इज अ सीरियल पोर्ट? अ सीरियल पोर्ट इज एन इंटरफेस थ्रू विच पेरिफेरल कैन बी कनेक्टेड यूजिंग अ सीरियल प्रोटोकॉल विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ वन बिट ऑफ डाटा एट ए टाइम ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन, दैट इज द सीरियल पोर्ट। और पैरेलल पोर्ट में क्या होता है? ऑन द अदर हैंड is an interface through which the communication between a computer and its peripheral devices takes place in a parallel manner, that is, data is transferred in or out parallelly or simultaneously using more than one communication line or wire. ओके, सीरियल पोर्ट में तो एक ही टाइम में एक बिट कम्युनिकेट कर सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है एक कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर, और पैरेलल पोर्ट में सिमिलटेनियसली वी कैन कम्युनिकेट विथ मैनी लाइन और मैनी वायर। ओके, प्रिंटर पोर्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल पोर्ट। जो प्रिंटर पोर्ट होता है वो पैरेलल पोर्ट का ही एक एग्जांपल होता है। देन वी हैव वीडियो पोर्ट्स, वीडियोग्राफिक एरे, इट इज़ वीजीए, इट इज़ अ फाउंड इन कंप्यूटर। आज के टाइम में हम देख सकते हैं इसको। इट इज़ फाउंड इन कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स, वीडियो कार्ड और मैनी टीवीज। द कनेक्टर इज़ कॉल्ड DE15। इस कनेक्टर का जो नाम है वो क्या है? DE15 होता है। ये डी शेप का होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो होते हैं 15 रो होती है और 15 पिन होते हैं, 3 रो होते हैं। 3 रो में 15 पिन्स होती हैं। शेप इसकी डी होती है। नेम इस पोर्ट का DE15 होता है, जिसके अंदर हम अपनी वीजीए जो होती हैं, वीडियोग्राफिक एरे वीजीए केबल जो है वो इंसर्ट करते हैं। ओके, देन वी हैव डिजिटल वीडियो इंटरफेस। इट इज़ अ हाई स्पीड डिजिटल इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ डिस्प्ले डिवाइस लाइक अ मॉनिटर। इट वॉज डेवलप्ड टू रिप्लेस द वीजीए टेक्नोलॉजी। जो वीजीए टेक्नोलॉजी थी उसको रिप्लेस करने के लिए अब वीडियोग्राफिक्स एरे जो था वीजीए था, उसको रिप्लेस करने के लिए आपके पास DVI डिजिटल वीडियो इंटरफेस जो है वो ये पोर्ट आया, ठीक है। और इसके टाइप हैं DVI-1, DVI-D, DVI-A, कॉमन टाइप्स हैं DVI के, ठीक है। तो काम तो दोनों का सेम है, ठीक है। लेकिन जो वायर होती है, जो मीन्स वी कैन इफ VGA port is available in our computer and DVI port is not available, तो हम क्या करेंगे? जो हमारी HDMI है वो VGA पोर्ट में ही उसी टाइप की हमें जो है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है, पिन वाली लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास DVI पोर्ट है आपके कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, तो आपको जो इंटरफेस करना पड़ेगा, जो वायर आपकी होगी वो DVI टाइप की ही वायर आपको अरेंज जो है वो करनी पड़ेगी। देन वी हैव डिस्प्ले पोर्ट। इट इज़ अ डिजिटल डिस्प्ले इंटरफेस with multiple channel for audio and other forms of data. It can be replaced VGA and DVI ports as the main interface between a CPU and monitor। के साथ इंटरफेस करने के लिए ये पोर्ट यूज़ होता है। और इसने किसको रिप्लेस किया है? VGA को और DVI पोर्ट को। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ डिस्प्ले पोर्ट इज़ 1.3 विच सपोर्ट्स रिजोल्यूशंस। जो रिजोल्यूशन होगी जिसको सपोर्ट करता हो 7680 इंटू 4320 ये रिजोल्यूशंस होती हैं। देन वी हैव हाई डेफिनेशन मीडिया, जो हमारी HDMI होती हैं। इट इज़ अ डिजिटल इंटरफेस दैट हेल्प्स अस टू कनेक्ट हाई डेफिनेशन एंड अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, मॉनिटर, ओके, और HD TVs, ब्लूरे प्लेयर्स, गेमिंग कंसोल्स, हाई डेफिनेशन कैमराज, ठीक है। इस उनके साथ जो अटैच होता है ये वाला पोर्ट हमारा अटैच होता है। देन वी हैव सीरियल
Universal Serial Bus (USB). USB port is used to transfer data, act as an interface for peripheral, and even act as power supply or devices connected to it. USB replace serial port, parallel port, game port, पावर चार्जर और पोर्टेबल डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं। यूएसबी मतलब जिसने हमारे सभी पोर्ट्स को रिप्लेस कर दिया। प्रिंटर की वायर हो वो भी इससे लग सकती है, हमारी पेन ड्राइव वो भी यूएसबी से लग सकता है, कीबोर्ड, माउस, एवरी थिंग वी कैन अटैच विद यूएसबी पोर्ट। ओके, इसने सभी को जो है वो रिप्लेस कर दिया है। टाइप ए इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूएसबी पोर्ट। टाइप ए है इसके अंदर और टाइप बी भी है, लेकिन ज़्यादातर हम कौन सा टाइप यूज़ करते हैं? टाइप ए को यूज़ करते हैं। देन वी हैव RJ45। ईथरनेट इज़ अ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू इंटरनेट। अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम ईथरनेट का यूज़ करते हैं। एंड कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग डिवाइस। The interface that is used for computer networking and communication is known as registered jack (RJ). इसको क्या बोलते हैं हम कम्युनिकेट करने के लिए? रजिस्टर्ड जैक बोलते हैं, जो कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। एंड RJ45 पोर्ट इन पर्टिकुलर इज़ यूज फॉर ईथरनेट ओवर केबल। केबल के साथ क्या होता है? हम RJ45 कनेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, RJ45 कनेक्टर इज़ अ 8 पिन कनेक्टर। ये हमारा 8 पिन कनेक्टर होता है और सभी पिन्स का जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है। द लेटेस्ट ईथरनेट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड गीगाबिट ईथरनेट एंड सपोर्ट्स अ डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ ओवर 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड। RJ11 दैट इज़ द अनदर टाइप ऑफ communication connector. RJ11 is another type of registered jack that is used as an interface for telephone, modem or ADSL connections. Okay, means हम कंप्यूटर्स के साथ जो यूज़ करते हैं वो हम RJ45 मोस्टली वी आर यूजिंग दीज डेज, और RJ11 का जो होता है वो हमारा मोडेम और जो टेलीफोन होता है उसके साथ यूज़ किया जाता है। इट इज़ द मेन इंटरफेस इन ऑल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स के ऊपर इसका यूज़ किया जाता है। ओके, RJ45 एंड RJ11 पोर्ट्स लुक अलाइक, दोनों ही सिमिलर हैं, लेकिन RJ11 होता है वो स्मॉलर होता है और उसके अंदर क्या होती है आपके 6 पिन कनेक्टर जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो RJ45 है उसके अंदर 8 पिन होती है आपकी। देन वी हैव फायर वायर इज़ यूज्ड विद डिजिटल ऑडियो वीडियो camcorders, personal computers, and offers sustained data transfer rates of over 3200 megabits, okay, mbits per second. Firewire was developed by Apple ने इसको डेवलप किया है, and it is similar to a USB port that facilitates a high speed connection between a computer and peripheral devices. कंप्यूटर और peripheral devices जो होता है उनके बीच में अगर आपको स्पीड अपनी इंक्रीज़ करनी है कम्युनिकेशन करने के लिए, इंटरफेस करने के लिए, दैन वी यूज़ फायरवायर। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सॉफ्टवेयर। दैट टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और इस टॉपिक को हम 4th क्लास से ही करते आ रहे हैं। कम्युनिकेशन कैन नाइदर थिंक नॉर वर्क ऑन इट्स ओन. It has to be provided with a set of predefined instructions which are written in a computer language. Such sets of instructions are known as program. Means a set of organized programs meant for specific purpose is known as software. Software is an intangible part of computer, means that we can touch, we can feel only. That's why we can say it is a intangible. Software can be broadly classified as application software, system software, and system utility software. First of all, application software. What is application software? Application software refers to the program which are designed to accomplish particular type of task to meet a user's specific need. Okay, application softwares can be classified into two categories: application package or customized package.
मीन्स जो हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बेटा जो यूज़ करते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके अंदर यूज़र जो है कंफर्टेबली अपना वर्क कर सकता है। एप्लीकेशन पैकेज आर टिपिकली डिज़ाइन टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक टास्क which meet the needs of general user. Some examples of application package are word processing package, spreadsheet package, data management package, DTP package, CAD package, case package, okay, presentation package. जैसे आपके पास अगर मैं बोलती हूँ तो स्प्रेडशीट पैकेज में क्या आ जाएगा, MS एक्सेल आ जाएगा, लोटस 1 2 3 आ जाएगा, ओपन ऑफिस कैल्क आ जाएगा, और वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएगा MS वर्ड, वर्ड स्टार, ओपन ऑफिस राइटर। ठीक है, ये पैकेज कंप्लीट आपका वर्ड से रिलेटेड पैकेज जो है वो होते हैं। देन वी हैव कस्टमाइज्ड पैकेज, software which is designed specifically for a specific purpose to fulfill the requirement of a particular individual or an organization is called a customized package। इसमें कंप्लीट सभी पैकेज ना होके जो पैकेज रिलेटेड है, जो नीड जिनकी रिक्वायरमेंट है, उन्हीं पैकेजेस को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड टेलर मेड सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, फी कलेक्शन सिस्टम, मीन्स जितनी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है। इट इज़ डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सनल नीड ऑफ अ यूज़र। Then we have utility software. Utility software is a set of small programs that support the execution and operations of the computer system by doing addition work like scanning the hard disk। ठीक है, जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। like scanning the hard disk to check the faulty sectors, virus scanning to check the interface files, examples WinZip, NOD32, these are the okay. Utilities are neither completely system software nor application software. It is difficult to make a defined list of utility software, but the most common type are disk and file management। जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है वो आ जाते हैं। ओके, देन वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स द यूज़र टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम एंड यूटिलाइज इट्स डिफरेंट रिसोर्सेज। इट कोऑर्डिनेट द operations and functionings of a computer along with the attached hardware components of the computer। okay, system software acts as interface or a bridge between the user and the computer। okay, system software can be broadly classified into operating system और language processing। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही क्या होता है, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर वर्क जो है वो करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसे एनेबल करता है वर्क करने के लिए। लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज हाई लेवल है, कंप्यूटर की लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है। तो जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं वो ही क्या करते हैं, हम जब कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस इंस्ट्रक्शंस को वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं उस लैंग्वेज में, या लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज जिसे बोल देते हैं उस लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करते हैं। देन आफ्टर द प्रोसेसिंग दोबारा से वो क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे यूज़र्स लैंग्वेज के अंदर। दैट इज़ द मेन वर्क ऑफ द लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर के अंदर आपके पास आ जाते हैं कंपाइलर आ जाता है, आपके पास असेंबलर आ जाता है आपके पास। ठीक है, ये लैंग्वेज प्रोसेसर का ही जो है वो काम करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशन में क्या होता है आपके पास, मोबाइल एप्लीकेशन इज़ कॉमनली नोन एज मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप जिसे हम बोलते हैं, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एप्पल फॉर इट्स मोबाइल फोन्स। मोबाइल एप्लीकेशन इज स्पेसिफिकली मीन्ड फॉर यूज ऑन हैंड हेल्ड वायरलेस कंप्यूटिंग डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन और टैबलेट्स के लिए ही मोबाइल एप्लीकेशंस। और आज के टाइम में हम अपनी बहुत ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, अनदर वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको हम डिटेल में करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा। ऑपरेटिंग
Operating system is a system software that acts as interface between the hardware and the user. We can say operating system, and we can see in the picture operating system provide an interface between the user, the hardware and the software, जिसमें सभी को कनेक्ट किया हुआ है. ओके, ओवरऑल कंट्रोलिंग जो होती है कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर वो किसकी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है. It manages and coordinates the operations and the sharing of resources of the computer. That is the main work. It acts as a host for applications that run on the computer and handles the operations of the hardware. Operating system. We can say operating system. Suppose you have a car, you want to drive it, but petrol is not available in the car, you can't drive it. Without operating system or computer system is like a box. एक box की तरह हमारा computer system होता है. We can't operate the computer system without operating system. Okay, it performs basic tasks such as booting of the system, recognizing input, sending output, keeping track of the location of the files and directories on the disk, controlling peripheral devices such as disk drives, printers, etc. Okay, the operating system sets the standard for the application program that run on the computer. यूज़र ने कमांड दी एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा? हार्डवेयर का हम यूज़ करेंगे. हार्डवेयर से क्या होगा? कर्नल के पास, देन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, देन एप्लीकेशन प्रोग्राम, और उसके बाद जो है वो यूज़र से रिलेटेड होता है. ठीक है. इट एक्ट्स एज अ मैसेंजर बिटवीन द computer hardware and the application program by ensuring or by establishing a connection between the application and the hardware devices through kernel. अब कर्नल यहाँ पर मेन वर्ड आपके पास आ जाता है. यूज़र का हमें पता है. एप्लीकेशन प्रोग्राम अभी मैंने बताया, जैसे एक्सेल में आप काम कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज एप्लीकेशन प्रोग्राम. ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ जो है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेन कर रहे हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर की हार्डवेयर. कर्नल is the core part of an operating system that does all major activities such as memory allocation, CPU time, scheduling, etc. of the operating system. operating system के जो सारे वर्क होते हैं वो कर्नल ही करता है. कर्नल हेल्प्स एन इनिशलाइजेशन बूटिंग फंक्शन. जो इनिशलाइजेशन होता है, बूटिंग फंक्शन होता है, उसमें हेल्प करते जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं. सच एज चेकिंग मेमोरी, इट एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स मेमोरी स्पेस विच अलाउज द सॉफ्टवेयर टू रन. ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्क है. ओके, कर्नल का वर्क है. कर्नल प्रोवाइड सर्विस दैट इंटरप्ट लाइक हार्डवेयर रिक्वेस्ट, enables the use of hardware devices such as USB, printer, scanner, etc. from the application software. अब आता है आपके पास next we have device driver. Device driver means a device driver is a form of software that enables a hardware device to the compatible with the computer. ठीक है. कई बार होता है ना, मेरा ये कीबोर्ड काम नहीं करता, भी कीबोर्ड के ड्राइवर ही आपके करप्ट हो चुके हैं. ठीक है. मेरा माइक काम नहीं कर रहा सिस्टम के अंदर, मेरे माइक के स्पीकर के ड्राइवर ही करप्ट हो चुके हैं. प्रिंटर के ड्राइवर, जैसे मीन्स कंप्यूटर के साथ अगर कोई डिवाइस अटैच करना होगा, उससे कंपैटिबल बनाने के लिए हमें ड्राइवर्स वहाँ पर इंस्टॉल करने होते हैं, वो डिवाइस ड्राइवर के अंदर आ जाते हैं. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. भी हम माने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली हम करेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की पिक्चर आप ये फ्लावर वाली देख सकते हो, सभी देखते हैं आज के टाइम में. ठीक है. हम सभी कंप्यूटर यूज़ करें, यही पिक्चर मोस्टली होती है इसी टाइप की. GNU लाइनेक्स. ठीक है. जब बर्ड वाली पिंगविन वाली पिक्चर है. और करैक्टर यूज़र इंटरफेस डोस जो होता है, वी कैन सी द पिक्चर. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ is one of the most popular series of operating systems developed by Microsoft Corporation. Each version of Windows includes graphical user interface. Means graphical user interface, what we want to do, we can see everything is available in the form of icons and pictures की फॉर्म में हर चीज़ अवेलेबल होती है. नो नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग. कुछ भी रिमेंबर रखने की नीड नहीं होती. इवन जब हम CUI के अंदर करैक्टर यूज़र इंटरफेस के अंदर काम करते हैं, अगर आपने कोई फाइल बनाई है, वी नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट फाइल.
ओके। और डिस्क जो आपका GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के अंदर क्या होता है, हमने कहीं भी फ़ोल्डर बना दिया, उसमें फ़ाइलें बना दी, जब कभी उसमें जाएंगे हम बाकी फ़ाइलें जो हमें काम करना है वो फ़ाइल भी अवेलेबल हो जाएगी, और जो हमने पहले फ़ाइलें बनाई थी, बना के हम भूल चुके हैं, उनको देखते हैं हमें पता चल जाएगा ये बनाई हुई है हमने फ़ाइलें। नो नीड टू रिमेंबर बिकॉज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। और करैक्टर यूज़र इंटरफेस के अंदर क्या होता है, पिक्चर्स और आइकन की फॉर्म में जो है वो डाटा आपका नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। Then we have GNU Linux. GNU Linux is a popular operating system that comes in various distributions. Linux operating system is similar to Windows operating system with some expansional features that make it is a useful and flexible operating system. Linux operating system comes in open source, that is its source code is freely available, no need to take any license for it. Okay, it is openly available, that is the main reason we are using Linux. ज़्यादातर हम Linux यूज़ करते हैं क्योंकि विंडोज़ को परचेज करना पड़ता है और यहाँ पर इसे परचेज करने की नीड जो है वो नहीं होती। ये Linux की विंडो है, हम देख सकते हैं, मीन्स Linux बोस की है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आपके पास। स्टार्ट बोस लाइव, इट अनेबल्स टू वर्क विद बोस ऑपरेटिंग सिस्टम इन लाइव मोड में काम करना है। इंस्टॉल बोस डेस्कटॉप, it enables to install the BOS operating system in graphics mode in hard disk. Install BOS desktop, it enables to install the BOS operating system to text mode on hard disk. Okay, to begin Linux we need to follow, switch on the computer, you open the initial booting screen आपके पास आएगी। after the booting process the login screen appears, type the username in box besides the username opens. Okay, और द पासवर्ड बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, टाइप द पासवर्ड इन द बॉक्स साइड, और पासवर्ड करेंगे तो हम एंटर की प्रेस करेंगे, आपके पास जो है बॉस की स्क्रीन आपके पास अवेलेबल यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। विंडो की तरह ही हम देख सकते हैं बॉस भी होता है, बस मेन ये होता है इसके अंदर आप देख लीजिए फ्री स्पेस कहाँ पर है, ठीक है। नोटिफिकेशन एरिया जैसे विंडो में होता है सेम है, मेन पैनल, डेस्कटॉप बटन, ठीक है, मेन मेन्यू बटन और आइकन्स आपके पास अपर साइड में राइट हैंड साइड में है। ओके, देन वी हैव यूजेस अ कंप्यूटर। यूजिंग अ कंप्यूटर, पोस्ट जो होता है, पोस्ट इज द इनिशियल सेट ऑफ सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन्फॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर rather right after it is powered on or restarted with the intent to verify all hardware is working properly before starting the boot process. The post process check computer hardware like रैम को चेक करता है, CD रोम को चेक करता है, कीबोर्ड, माउस, एवरीथिंग इट विल बी चेक्ड बाय द पोस्ट। देन वी हैव boot. Boot is the process of powering on a computer and getting into the operating system. After completing post process, the BIOS check the hard drive for the bootloader located in the first sector of the hard drive. ठीक है, the bootloader looks for the operating system on the hard drive and begins loading the operating system that is found like Windows, Linux, etc. Then we have shutdown, सभी को पता है, shutdown is the term used to describe the process of closing all running application in the preparations to turn off a computer, ठीक है। और the operating system is the last program to be closed as part of a computer's shutdown process. To restart or reboot a system means that the computer goes through a complete shutdown process, then starts back up again. Rebooting is sometimes necessary after installing a software program, installing operating system updates to recover from an error or to reinitializations drivers or hardware devices, ठीक है। तो ये था आपका डाउन, रिबूट, बूट और पोस्ट क्या होती हैं। देन वी हैव लॉग ऑफ भी होता है, व्हेन अ लॉग्ड इन यूजर हैज़ enabled the session but has left the computer running for someone else is known as log off. It is also known as log out, sign out, etc. This is faster than a reboot and a better choice
व्हेन अ कंप्यूटर सिस्टम इज शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल यूजर्स, कई यूज़र हमारे पास होते हैं। और लास्ट इज टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। हाउ टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, एवरी स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट इट। राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप and select new options. A some menu appear on the screen. Okay, और आपने क्या करना है, न्यू से फोल्डर लेना। वेन एवर यू क्लिक देयर यू कैन राइट अ नेम, ओके, एंड टू क्रिएट अ फोल्डर, फोल्डर पर क्लिक करके आपने न्यू फोल्डर पे अपना नेम देना और प्रेस द एंटर की। द न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड वेयर यू वांट टू क्रिएट इट। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव completed this chapter. Okay.